ऑनलाइन इंस्पिरेशनल लेक्चर सीरीज के संध्याकालीन सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शुभ भावनाओं से भरा हो हृदय तो प्रस्फुटित होता भाग्योदय। इस कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभ प्रेरणाएं सुनते हैं हमारे आज के विशेष अतिथि द्वारा। एनके ग्रोवर जी, मैनेजिंग डायरेक्टर, सेंट्रल रेल साइड वेयरहाउस कंपनी लिमिटेड। Namaskar, this is N.K. Grover from Central Rail Side Warehouse Company Limited, New Delhi. I am the Managing Director of this company. Friends, I want to share with you that nowadays we all are stressed. We are worried about the health of ourselves, our family members, our friends, our colleagues. Many people are worried about their jobs. Some people have lost their jobs. Some are worried about losing their jobs. Even the businessmen, they are worried about their business. The business is not happening. The profit is not there. Money is not being recovered. So many worries are there. So this is keeping us so much stressed. We have to find a way out how to reduce this stress and stay calm, peaceful and healthy. I am happy to know that Prajapita Brahma Kumari's Ishwariya Vishwavidyalaya, who have their headquarters at Mount Abu, Rajasthan, their transport, travel and tourism wing is holding an e-conference on calm down during lockdown on 15th to 16th May 2020. This conference is very useful for the executives working in different organizations and the institutions. It's very useful for the executives, for the managers, for the businessmen, for the professionals. In fact, this will be useful for everyone. I want to tell you that Prajapita Brahma Kumari's Ishwariya Vishwavidyalaya, they had two training programs for us. One was on the art of self-engineering and the second was being positive no matter what. These two programs were found very useful by our executives. I had personally attended this program and it had impact on our life, on the way we think about ourselves. So I would request that we all should attend this conference on calm down during lockdown. This will be very useful. This will be useful in the sense that we will be able to reduce our stress, and I wish all the best to Prajapita Brahma Kumari's Ishwariya Vishwavidyalaya. This is a great service to the nation, to the people in our country, and I think even people from the other countries will also be finding it very, very useful. So I wish them all the best for this e-conference. Thank you. राजयोग मेडिटेशन के अभ्यास का दूसरा चरण, परमात्मा का सत्य परिचय प्राप्त कर उनके यथार्थ स्वरूप पर मन को एकाग्र करना, मीटिंग गॉड। इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी बिंदु बहन। ओम शांति। बचपन से हम सबको चलना सिखाया गया, माता पिता ने बोलना सिखाया, पर क्या किसी ने हमको कभी याद करना सिखाया? हम अपने प्रियजनों को बचपन से याद करते आए। याद करना कितना स्वाभाविक था हमारे लिए, पर फिर भी जब भगवान को याद करने की बात आती थी तो मन एकाग्र करना बड़ा मुश्किल होता था। हम अभी भी फील करते हैं, हम विशेष स्थान मुकर्रर करके, समय मुकर्रर करके भी
जब भगवान को याद करने बैठते हैं तो एक जनरल सबकी कंप्लेन सुनने में आती है कि मन भागता है, मन एकाग्र नहीं कर पाते हैं, उसको याद नहीं कर पाते हैं। और शायद उसका कारण यही है कि परमात्मा का सही परिचय हमारे पास नहीं है, हम उसे पूरा जानते नहीं हैं और इसीलिए याद करना मुश्किल फील करते हैं। ये विषय शायद केवल बुद्धि का नहीं है, उसे जानने के लिए केवल बुद्धि के साथ साथ ज़रूरी है दिल। दिल से हम उससे गहरा रिश्ता जोड़ सकते हैं, तो जहाँ रिश्ता होता है वहाँ याद बड़ी स्वाभाविक हो जाती है। कभी भी हमने परमात्मा से इंटीमेट, पर्सनल, प्राइवेट रिलेशनशिप जोड़ने का सोचा ही नहीं, उसे इंटीमेटली जानना चाहा ही नहीं। देखिए, कोई भी रिश्ता होता है, जैसे हस्बैंड वाइफ का रिश्ता, तो हस्बैंड वाइफ केवल नाम दे देने से रिश्ता नहीं जुड़ जाता है। वो दोनों आपस में एक दूसरे को टाइम डिवोट करते हैं, उस रिश्ते में ऑनेस्टी रहती है, उस रिश्ते में जहाँ लॉयल्टी होती है, वो दोनों जब आपस में एक दूसरे को समय देते हैं तो एक दूसरे की लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स का पता चलता है, नीड्स का, डिज़ायर्स का मालूम पड़ता है, हॉबीज़ का मालूम पड़ता है, अंदर बाहर एक दूसरे को ऐसे अच्छा जान जाते हैं, इतना आपस में एक दूसरे में ट्रस्ट बैठने लगता है कि ग्रेजुअली एक सॉलिड रिलेशनशिप बिल्टअप हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह से परमात्मा के साथ भी आवश्यक है कि हम उसे जानें, और इसीलिए आज का ये विषय बहुत मदद करेगा, ताकि हम जब उसे जान जाएंगे, उसका परिचय प्राप्त कर लेंगे, तो सहज उसमें मन एकाग्र कर सकेंगे। तो सबसे पहला सवाल है कि आखिर भगवान हैं कितने? तो फिर मैं उतनों का परिचय आपको दूँ ना। क्या लगता है कितने होंगे? हम अक्सर कहते हैं 33 करोड़ देवी देवताएं, यानी देव आत्माएं अनेक हैं, पाप आत्माएं, पुण्य आत्माएं अनेक हैं, लेकिन परमात्मा एक है। और शायद इसीलिए ही हम कभी भी भगवान के लिए प्लूरल अक्षर का उपयोग नहीं करते हैं, बहुवचन का उपयोग नहीं करते हैं। हम कहते हैं हे भगवान मेरी सुन लो जब उसे याद करते हैं। कभी ऐसा नहीं कहते हे भगवानों मेरी सुन लो, यानी भगवान अनेक नहीं, एक है, दो भी नहीं। देखिए, जब हम गाते हैं ना, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, यानी माता अलग पिता अलग ऐसा भी नहीं है। जैसे राधे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, राम सीता जी, उनमें माता सीता माता अलग है, पिता अलग है, तो दो भी नहीं है। इसीलिए हम गाते हैं तुम माता भी हो पिता भी तुम ही हो, तुम ही बंधु सखा हो। तो वो एक जिसको सब याद करते हैं, उस परमात्मा पिता को जानने से पहले मैं आप सबके समक्ष कुछ कसौटी रखती हूँ कि जिससे हम परख सकें उस ईश्वर पिता को। देखिए, जैसे कि एक ज्वेलर होता है, वो सोना खरा है या खोटा उसे कसौटी पे कस के देखता है और परखता है। बिल्कुल इसी तरह से मैं आपको ऐसी 5 बातें बताती हूँ जो कि कसौटी की तरह हैं, जिससे हम परमात्मा को परख सकेंगे। क्योंकि आजकल तो नित नए भगवान निकलते आ रहे हैं, तो परमात्मा आखिर किसे कहा जा सकता है? तो सबसे पहली बात, भगवान वो
जो सर्वोच्च हो, यानी जिससे बड़ा कोई नहीं, जिसका कोई माता पिता नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई टीचर नहीं, वो आगे किसी की तपस्या, आराधना, पूजा न करते हों, वो किसी से शक्ति न लेते हों, स्वयं सर्वशक्तिवान हो, उसे भगवान कहेंगे। ठीक लगता है ना? तो ये पहला लक्षण है, भगवान वो जो सर्वोच्च हो। दूसरा, भगवान हम उसे कहेंगे जो सर्वधर्म मान्य हो, अर्थात जिसे सब धर्मों की आत्माएं जाने अनजाने में मानती हों, जो सबका पिता हो, जिसे सब धर्मों की आत्माएं स्वीकारती हों। तीसरा, भगवान वो जो मुक्त हो, कोई प्रकार के बंधन में बंधा हुआ न हो। जैसे आप और हम जन्म बंधन में बंधे हुए, हम अक्सर ही यूज़ करते हैं जन्म बंधन, कर्म बंधन, देह का बंधन, यानी भगवान वो जो देहधारी न हो, कोई देह के बंधन में बंधा हुआ न हो। देखिए, हम उसको मुक्ति दाता कह करके याद करते हैं, यानी मुक्ति तो वही प्रदान कर सकता है जो स्वयं मुक्त होगा। जैसे मैं अगर रस्सियों से बंधी हुई हूँ और अगर आपके हाथ खुले हैं तो आप मुझे खोल सकते हैं, और अगर आप भी रस्सियों से बंधे हुए हैं, बंधन में हैं, तो क्या आप खोल पाएंगे? यानी किसी को मुक्त करने के लिए पहले खुद मुक्त होना ज़रूरी है। बिल्कुल उसी तरह से हम आत्माएं बंधनों में हैं, जन्म बंधन, कर्म बंधन, देह के बंधन, और परमात्मा हम उसे कह सकते हैं जो मुक्त हो, क्योंकि वो मुक्ति प्रदान करने वाला है। चौथा लक्षण, भगवान वो जिसकी स्थिति अपरिवर्तनशील हो, यानी एक रस हो, घड़ी घड़ी का घड़ियाल न हो। जैसी हमारी स्थिति है, कभी मूड ऑफ हो जाता है, कभी अपसेट हो जाते हैं, किसी ने महिमा की तो बहुत खुश हो जाते हैं। ये भगवान के लक्षण कदापि नहीं हैं। कई कहते हैं भगवान को क्रोध आ गया, भगवान ने श्राप दे दिया। भगवान वो जिसकी स्थिति एक रस हो, अपरिवर्तनशील हो, यानी कि भक्त ने दिल से प्यार से पूजा की तो वो उसके लिए प्यार का सागर और बाकियों के लिए नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसका स्नेह सदा है, उसकी स्थिति एक रस है, अपरिवर्तनशील है। और लास्ट लक्षण, लास्ट कैरेक्टरिस्टिक, भगवान उसे कह सकते हैं जो दाता हो, सदा देने वाला हो, एवर डोनर हो। तो ये कुछ 5 बातें ऐसी कसौटी की तरह हैं जिससे हम परख सकते हैं, क्योंकि आज तक हमारी ही मान्यताओं को हमने बहुत परखा नहीं, उन पर बहुत विचारा नहीं, जिससे जैसी मतें मिलती गई तो हम स्वीकारते गए। और आज भी आप जो बातें जानेंगे तो ये अगर कसौटी पर जो भी खरे उतरते हैं उसे कहा जा सकता है कि वो ईश्वर पिता है, भगवान है। जैसे गुरु नानक देव जी ने कहा, एक ओंकार है, वृक्ष के नीचे बैठ तपस्या उन्होंने की, और गुरुवाणी में लिखा हुआ है कि परमात्मा एक ओंकार है, एक निराकार है, ऐसे गुरु नानक देव जी ने कहा। ओंकार, उस निराकार की ओर इशारा किया। जीसस क्राइस्ट ने बाइबल में कहा है, आई एम द सन ऑफ गॉड, बट गॉड इज लाइट। तो उन्होंने भी जैसे कि इशारा उस ज्योति की ओर किया
God is spirit. That's written in the Bible. मुसलमान भाई वैसे मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, लेकिन जब मक्का में जाते हैं तो मक्का में दीवार पर एक गोल काला प्रकाश के आकार का पत्थर गड़ा हुआ है, और जब तक उसे दूर से चूम न लें तब तक अपनी हज पूरी नहीं समझते। कहने का भाव है कि सब धर्मों की आत्माएं जाने अनजाने में ये स्वीकारती हैं कि वो लाइट है। आप महावीर स्वामी जी, महात्मा बुद्ध, शंकराचार्य जी, इन सब की भी अगर जीवन कहानी पढ़ें तो बहुत स्थानों पर ये बात आती है कि हमने प्रकाश का साक्षात्कार किया। बॉम्बे के पास में शिरडी है, जहाँ लोग साईं बाबा जी के दर्शन के लिए जाते हैं। उन्होंने भी कहा सबका मालिक एक है, उस एक की ओर इशारा किया। तो जैसे कि इन सभी ने मैसेज कितना सही दिया कि वो लाइट है, वो ज्योति है, फिर भी हम इन सब तक सीमित रह गए, गुरु नानक देव जी तक, जीसस क्राइस्ट तक। और उसका कारण था कि उन्होंने जिसकी ओर इशारा किया उस लाइट से हम कनेक्ट नहीं हुए, क्योंकि हम खुद अपने आप को ज्योति, लाइट, आत्मा नहीं समझते थे। हम अपने आप को ये देह समझते हैं। हम पोजीशन से, प्रोफेशन से अपने आप को आइडेंटिफाई करते रहे, और जब अपने आप को हम देह समझते हैं तो हम बहुत स्वाभाविक ही देहधारी को याद कर पाते हैं। उस निराकार को याद करना हमारे लिए निराकार से कनेक्ट होना पॉसिबल नहीं था। और फिर यही कारण हुआ कि जब लाइट से नहीं कनेक्ट हो पाए तो जो उस समय नेक्स्ट टू गॉड थे हम उनसे कनेक्ट हुए, जैसे गुरु नानक देव जी से कनेक्ट हुए या जीसस क्राइस्ट से कनेक्ट हुए। पर उन सब का मैसेज बिल्कुल सही था कि भगवान ज्योति है, देहधारी नहीं है, निराकार है। और अगर हम इंटेलेक्ट से थोड़ा विचारें भी कि उस भगवान के क्या गुण होंगे, तो बुद्धि कहती है कि वो गुणों का सागर होगा। ही इज ओशन ऑफ लव, ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ वर्च्यूज, ओशन ऑफ ऑल पावर्स। इस चित्र में परमात्मा के गुण दर्शाए गए हैं और एक एक गुण की तुलना सागर से की गई है। प्यार का सागर, नदी नहीं, आनंद का सागर है वो। बिल्कुल सही है। फलानी फलानी नदी सूख गई ऐसा आपने सुना होगा, लेकिन फलाना फलाना सागर सूख गया ऐसा कभी सुना? क्योंकि सागर अपने आप में विशाल होता है और सागर की स्थिति अपरिवर्तनशील होती, एकरस होती, सदा है। ऐसे परमात्मा के गुण, परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा की शक्तियाँ एक रस हैं, सदा हैं, और इसीलिए उनके गुणों की तुलना सागर से की जाती है। और इन एक एक गुणों को ज़रा हम विचारें, जैसे वो दिव्य बुद्धि दाता है, दिव्य चक्षु विधाता है, हम पतितों को पावन बनाने वाला है, तो उनके जो भी गुण हैं उन एक एक गुणों द्वारा हम आत्माओं का कल्याण समाया हुआ है। अगर वो हम पतितों को पावन बनाते हैं तो हमारा उससे कल्याण होता है। अगर वो
हमें दिव्य बुद्धि प्रदान करते हैं, उससे हमारा कल्याण होता है। तो हर गुण में हमारा बेनिफिट, हमारा कल्याण छिपा हुआ है। आप एक संस्कृत की डिक्शनरी उठाएं और उसमें एक संस्कृत अक्षर शिव का अर्थ देखें, तो शिव का अर्थ है कल्याणकारी, बेनिफैक्टर। तो उस परमात्मा पिता का, उस भगवान का, उस ईश्वर का गुणों के आधार से नाम पड़ता है, कर्तव्यों के आधार से नाम पड़ता है शिव। वो सदा शिव है, अर्थात सदा कल्याणकारी है। अब आज तक जो हमने शिव का चित्र देखा, शायद वो इस रूप में देखा, या लिंग के रूप में, या शंकर जी के रूप में, तपस्वी रूप में। अब आप विचारें, शंकर जी को तो तपस्या करता हुआ दिखाया है, यानी वो किसी शक्ति को याद कर रहे हैं, किसी के ध्यान में बैठे हैं। स्वयं देव आत्मा है, महान आत्मा है, देवों के भी देव हैं, महादेव हैं, लेकिन परमात्मा की याद में बैठा दिखाया है। और हमने शुरुआत में ये बात की कि भगवान वो जो सर्वोच्च हो, जो आगे किसी की तपस्या आराधना न करते हों। वैसे भी देखिए, जब हम शिवरात्रि मनाते हैं और अगर शिव और शंकर एक होते तो हम ऐसे भी तो कह सकते थे शंकर रात्रि, पर क्या ऐसे कहा जाता है? या पूरे भारत भर में अगर हम देखें, जहाँ जहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग के यादगार हैं, जैसे नॉर्थ में भारत में देखें तो अमरनाथ है, साउथ में रामेश्वर है, ईस्ट में पशुपतिनाथ है, वेस्ट में सोमनाथ है। ऐसे जहाँ पर भी यादगार शिव के पाए जाते हैं, उन्हें हम शिवालय कहते हैं, कभी भी शंकरालय नहीं कहते। अगर शिव और शंकर एक होते तो हम शंकरालय भी तो कह सकते थे ना। तो शंकर जी का तपस्वी स्वरूप ही बता रहा है कि वो किसी के ध्यान में है। और हिंदुओं के 33 करोड़ देवी देवताओं में एक शिवलिंग ही है जिसका अपना देह नहीं दिखाते हैं, उन्हें देहधारी नहीं बताया है, क्योंकि परमात्मा ज्योति स्वरूप है। और उस ज्योति स्वरूप की पूजा करना पॉसिबल नहीं है। यानी अगर अपने भाव व्यक्त करने हैं, हमको अगर अपने रिगार्ड्स व्यक्त करने हैं, हमें जल चढ़ाना है, फल चढ़ाना है, फूल चढ़ाने हैं, सम्मान व्यक्त करने हैं, तो निराकार को व्यक्त करना पॉसिबल नहीं होता। तो हमने क्या किया, उसी निराकार का बड़ा स्वरूप बनाया, बिंदी की पिंडी बनाई पूजा की खातिर। पर आज जो हम परिचय पा रहे हैं, हम तो उस बिंदी की बात कर रहे हैं कि सब ने उस ओंकार की तरफ संकेत किया। हम तो उस पिंडी की भी बात नहीं कर रहे। जो है, जैसा है, जिस रूप में है, उसी रूप में हम उसको याद करने की बात कर रहे हैं। और उसका कारण है, देखिए, एक पिता जिसके 2 बच्चे हैं। एक बच्चा सुबह से पिता की महिमा के पुल बांधता है, पिता के लिए दिन भर में पार्टीज होस्ट करता है, पिता को गार्लैंड्स, बुकेज प्रेजेंट करता है। पर पिता जो कहता है ना,
वो मानता नहीं है। एक और बच्चा है, पिता का बड़ा आज्ञाकारी है, भले वो पार्टीज होस्ट नहीं करता, बुकेज प्रेजेंट नहीं करता। आपको क्या लगता है पिता का ज़्यादा प्यार किस बच्चे के प्रति होगा? ज़रूर उसी के प्रति जो आज्ञाकारी है। आज हम क्या कर रहे हैं? फूल मालाएं चढ़ा रहे हैं, व्रत नियम पालन कर रहे हैं, भगवान के प्रति जप तप दान पुण्य आदि विधियां कर हम अपने रिगार्ड्स व्यक्त करते हैं, पर वो जो कह रहे हैं उनकी आज्ञा मानते नहीं हैं। तो हम भगवान का कितना प्यार पाएंगे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं ना। उनकी आज्ञा क्या है, उस परमात्मा पिता की हम सबके प्रति आज्ञा क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, फिर आगे इनके बहुत से बाल बच्चे भी हैं, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब छोड़ो। तो आज्ञा हम मानते नहीं हैं और सब विधियां आदि करते हैं। इस विद्यालय में विशेष हम परमात्मा की आज्ञाओं पर चलने का प्रयास करते हैं। परमात्मा हमें कहते, मैं जो हूँ जैसा हूँ उसी रूप में मुझे याद कर मेरी आज्ञाओं पर चलो। तो हम विशेष ध्यान देते हैं, रात सोने से पहले चार्ट लिखते हैं, आज सारा दिन कैसा बीता, किसी को दुख तो नहीं दिया, आज स्वयं सबसे संतुष्ट रहे, सबको संतुष्ट किया, परमात्मा की आज्ञाओं पर पूरा चले। तो उस निराकार ज्योति स्वरूप का नाम है शिव। पर हम यहाँ केवल शिव न कह करके शिव बाबा कहते हैं, और बाबा कहते ही संबंध की याद आती है। हम परमात्मा से आज तक गाते तो सब संबंध थे कि तुम ही मेरे माता भी हो, पिता भी हो, बंधु भी हो, सखा भी हो, लेकिन हमने वो संबंध सब जोड़े नहीं, केवल गाए। और उसका प्रूफ है, देखिए, एक करोड़पति पिता हो और उसका बच्चा समझो इतना ओबीडियंट नहीं है, पर पड़ोसी का बच्चा बड़ा ईमानदार है, बड़ा आज्ञाकारी है। आपको क्या लगता है पिता अपनी प्रॉपर्टी, करोड़ों की प्रॉपर्टी पड़ोसी के बच्चे के नाम कर देगा केवल इसलिए कि वो आज्ञाकारी है या वो बहुत ऑनेस्ट है? नहीं ना, आखिर तो अपने ही बच्चे को देगा। पड़ोसी के बच्चे को अगर उस प्रॉपर्टी में से कुछ चाहिए, वो मांगता रह जाएगा, मिलेगा नहीं। कहने का भाव है, बच्चा जिस दिन पैदा होता है उसका अपने पिता की प्रॉपर्टी पर पूरा अधिकार होता है। जब हम भगवान को अपना पिता कहते हैं और हम उस अपने आप को उसका बच्चा फील करते हैं, तो उसी पल मांगना समाप्त हो जाता है, मांगने की गुंजाइश रहती नहीं है। और हम पूजा करने बैठते हैं और मांगना शुरू करते हैं, हे परमात्मा शांति दे, हे भगवान मुझे शक्ति दे, वरदान दे। ये क्या कर रहे हैं? मांग रहे हैं ना, बच्चे को एग्ज़ाम में पास कर दे, एक लॉटरी मेरे नाम लगा दे। क्या कर रहे हैं? मांग रहे हैं। ये मांगना सिद्ध करता है कि हमने उससे रिश्ता जोड़ा नहीं है, गाया भले, हमने सब संबंध गा दिए पर जोड़े नहीं। देखिए, एक छोटा सा बच्चा है, अपने पिता की खड़ी कार, पार्क की हुई कार के अंदर ड्राइवर की सीट पर बैठा है और स्टीयरिंग हिला रहा है
और मैं उसके बाजू में जा कर के उस बच्चे को पूछती हूँ, बेटे ये कार किसकी है? तो तुरंत वो जवाब देता है, मेरी है। तो मैं उसको कहती हूँ, नहीं नहीं, पापा की है। तो वो तुरंत कहता है, नहीं, मेरी है। कहने का भाव है, एक छोटे से बच्चे को भी अंदर में ये नशा है और पता है कि जो मेरे पापा का है वो मेरा है। यानी पापा के हर चीज पर मेरा अधिकार है। और हम ये तो मानते हैं कि हमारा पिता परमात्मा शांति का सागर है, करुणा निधान है, भाग्य विधाता है, प्यार का सागर है। पर जब हम उससे मांगते हैं तो ये मांगना सिद्ध करता है कि हमने रिश्ता जोड़ा नहीं, कहीं ना कहीं दूरी है, केवल गाया है। वो जोड़ने की जरूरत है, क्योंकि जिस पल मैं फील करती हूं कि वो शांति का सागर मेरा, तो इमीडिएटली शांति का संचार आरंभ हो जाता है। उसकी शांति पर मेरा अधिकार मुझे फील होने लगता है। जब वो मेरा है तो उसके सब गुणों पर मेरा अधिकार है। वो गुण फील होने लगते हैं, फ्लो होने लगते हैं। बिल्कुल उसी तरह से इस विद्यालय में हम दिन की शुरुआत सुबह 3:30 बजे से करते हैं और 4 से 4:45 बजे तक खास परमात्मा की याद से अपने प्यार का स्टॉक, अपनी शांति का स्टॉक भरते हैं, ताकि फिर दिन भर जो मिले उसे दे सकें, मांगना ना पड़े। आज दिन भर हमें होता है चलो किसी हिल स्टेशन पर जाएं ताकि हमें खुशी मिले, या तुम मुझे ठीक से बात करो ताकि मुझे सम्मान मिले, या आज चलो कुछ घर में अच्छा नया खाने का बनाओ ताकि मुझे खुशी मिले। तो हम खुशी, सम्मान, शांति, प्यार दिन भर मांगते रहते हैं, क्योंकि हमारा इंटरनल स्टॉक भरा हुआ नहीं है। और जब हम उस परमात्मा पिता से कनेक्ट होते हैं, उससे बुद्धि की तार जोड़ते हैं, उससे रिश्ता जोड़ते हैं, तो हम फील करते हैं कि हमारा शांति का, प्यार का, खुशी का भंडार भरता जा रहा है और मांगने की फिर दरकार रहती नहीं है। तो हर संबंध परमात्मा से अनुभव करें। जब भोजन खाएं, ऐसे फील हो परमात्मा माँ बन के खिला रहा है। जब दिल की कोई बात शेयर करनी है, कैसे बच्चे अपने फ्रेंड्स को सब कुछ सुना लेते हैं, एक बार माँ बाप को नहीं सुनाएंगे, ऐसे भगवान के साथ फ्रेंड का संबंध अनुभव करके देखें। वो बेस्ट फ्रेंड साबित होता है। आप दुनिया की भीड़ में जब चल रहे हैं, ऐसे फील करें उसकी छत्र छाया मेरे सिर पर है। भगवान मेरा पिता है, पिता की छत्र छाया है। और ऐसी छत्र छाया जो फुल प्रूफ है। जैसे नहीं आप बारिश के दिनों में छतरी लेकर चल रहे हो, आपको पता है और कोई भीग सकता है, आप नहीं भीग सकते, आपके पास छतरी है। बिल्कुल इसी तरह से परमात्मा पिता की फुल प्रूफ प्रोटेक्शन में मैं हूँ। पिता का संबंध, ऐसे एक एक संबंध भगवान से जोड़ के देखें, वो बहुत अच्छी तरह से हर संबंध अदा करता है। अब सवाल उठता है, वो भगवान भला रहता कहाँ है? क्योंकि आज तक तो हम समझते थे शायद दिल में रहता है, मन में रहता है, तेरे में भी भगवान, मेरे में भी भगवान, पत्ते पत्ते में भगवान, इस प्रकार से हम उसे सर्वव्यापी कह देते हैं। पर क्योंकि हमको यहाँ योग सीखना है, हम उसमें मन एकाग्र करने की कला सीखना चाहते हैं, तो हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आखिर भगवान रहते कहाँ हैं, ताकि मैं अपनी बुद्धि को वहाँ ले जाऊँ, वहाँ एकाग्र कर सकूँ। तो जिन लोगों ने भगवान को सर्वव्यापी कहा, 2 कारणों से कहा।
एक भावना और दूसरा भय। पहला भावना। जैसे देखिए, मीरा को लगता था जिधर देखती हूँ उधर गिरधर गोपाल, और किसी को नहीं नजर आता था। मीरा को श्री कृष्ण सब जगह नजर आता था, क्योंकि मीरा की श्री कृष्ण के प्रति भावना थी। जैसे माँ का बच्चा पहली बार माँ से बिछड़ करके कहीं गया हो, दिल्ली गया हो, और माँ यहाँ बॉम्बे में है, और माँ बच्चे को याद करती है, और माँ को यहाँ उसकी आवाज़ सुनाई देती है, और किसी को नहीं सुनाई देती, माँ को ही सुनाई देती है, क्योंकि माँ की बच्चे के प्रति भावना है। बिल्कुल इसी तरह से भक्तों ने जब भगवान में भावना रखी तो उनको उसकी उपस्थिति यहाँ पर फील हुई और दिल गा उठा कि वो शायद यहीं है। लेकिन यही उसकी कमाल है कि वो एक स्थान पर बैठकर एक एक को साथ का अनुभव कराता है। जैसे नहीं, वो प्रेमी प्रेमिका है, अभी प्रेमिका फर्ज कीजिए दुबई में है, प्रेमी यहाँ है, और प्रेमिका को वो फ़ोन करता है और कहता है तू मेरी आँखों में समाई हुई है, तू मेरे दिल में समाई हुई है, तू मेरे रोम रोम में समाई हुई है। तो प्रेमिका आँखों में है, दिल में है। मतलब मुझे अगर प्रेमिका को मिलना है तो वो कहाँ है? वो तो दुबई में है। तो यहाँ क्या है? यहाँ भावना है। तो ऐसे भक्तों ने भगवान के प्रति जब भावना रखी, कच्ची भावना नहीं, हल्की भावना नहीं, बहुत अगाढ़ भावना, बहुत प्योर फीलिंग्स, तो उनको यहाँ उसके साथ का अनुभव हुआ और गा उठे कि वो यहीं है। तो एक भावना के कारण हमने भगवान को सर्वव्यापी कहा, और दूसरा भय। देखना, भगवान सब जगह है, पाप कर्म नहीं करना, वो देख रहा है। तो ये भय पैदा किया ताकि हम पाप कर्मों से बचे रहें। बाकी भगवान एक स्थान पर बैठ कर के भी एक एक को जानता है, सर्वज्ञ है। उसे यहाँ उपस्थित रह करके एक एक को देखने की दरकार है भला। तो भावना और भय के कारण हमने भगवान को सर्वव्यापी कह दिया। बाकी तो जो भगवान को नहीं भी मानते ना, वो इशारा सही करते हैं, कहते हैं हम भगवान को नहीं मानते, इशारा ऊपर की ओर करते हैं, यानी वो कहीं ऊपर का रहने वाला है। इसीलिए हम कहते हैं ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम और ऊंचा तेरा धाम, यानी उसका निवास स्थान भी कहीं ऊपर में है। तो ये मनुष्य सृष्टि है जहाँ वर्तमान समय हम हैं। सूर्य चांद तारागण से पार सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया है। परे ते परे जो धाम है उसे परम धाम कहते हैं, जहाँ आत्माएं वास करती हैं, जहाँ से हम आत्माएं सृष्टि पर पाठ बजाने के लिए आती हैं। वो हम आत्माओं का भी मूल निवास स्थान है। परमात्मा भी परम धाम का वासी है। इसीलिए हम कई बार बात बात में कह भी देते हैं, मैं क्या जानूं, ऊपर वाला जाने। हम ऐसे नहीं कहते अंदर वाला जाने, दाएं वाला जाने, बाएं वाला जाने। हम क्या कहते हैं, ऊपर वाला जाने, यानी वो कहीं ऊपर रहता है। तो वो भगवान परम धाम का वासी है। यानी अब हम जब उसे याद करें तो बुद्धि को इस 5 तत्वों की दुनिया से पार सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया में ले जाएं, जो महातत्व ब्रह्म तत्व छठा तत्व है, निर्वाण में ले जाएं। वो स्वीट साइलेंस होम है। बाइबल में उसे सुप्रीम अबोर्ड कहा है। भगवान वहाँ रहता है। तो देहभान भूलकर उसे वहाँ याद करें। अब अगर
उस परमात्मा से मुझे बातचीत करनी है, तो उसके साथ मेरा कम्युनिकेशन वाइब्रेशन के लेवल पर है, थॉट्स के लेवल पर है। मैं सोचता हूँ और उससे पहुँचता है। ये एक ऐसा कनेक्शन है जिसे वायरलेस कनेक्शन कह सकते हैं, पर ये तभी कनेक्ट होता है जब मेरी बुद्धि वाइसलेस हो, यानी उसमें वाइसेस, मैल न हो, विकार न हो, मैलापन न हो। मलिन मन कहते हैं ना, परमात्मा की याद में कदापि लीन हो नहीं सकता। देखिए, जैसे टेलीपैथी होती है ना, आपने किसी को याद किया और उन्हीं का ही फ़ोन आ गया, या कोई दरवाजे पर आया, आपने दरवाज़ा खोला और आप तुरंत उसे कहते हैं, अरे मैं आपको ही याद कर रहे थे, और आप आ गए। तो इसे टेलीपैथी कहा जाता है कि आत्मा दूसरी आत्मा को याद करती है और वो वाइब्रेशंस पहुंचते हैं। और जब ये आत्माओं का आपस में पॉसिबल है, विचार करें, सोल का सोल के साथ पॉसिबल है, तो क्या सुप्रीम सोल के साथ पॉसिबल नहीं होगा? तो ज़रूर हमारे संकल्प, हमारी भावनाएं, हमारे ये वाइब्रेशंस उस तक पहुंचते हैं। अब ये ऐसी बात है कि जो प्रूव नहीं की जा सकती, फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। दुनिया में दो चीज़ों की अथॉरिटी गाई जाती है। एक साइंस की अथॉरिटी जिसे प्रूव किया जा सकता है, और दूसरा है अनुभव की अथॉरिटी। हमारे गुलजार दादी जी कहते हैं कि आपने अगर चीनी को चखा है, मीठी है, फिर सारी दुनिया भी अगर कहे कि वो तीखी है, आप नहीं मानेंगे। आपको पता है, आपने चखा है, वो मीठी है। इस तरह से भगवान के प्यार का, उसकी शक्तियों का, उसकी मदद का अनुभव करना ज़रूरी है। अगर आप स्टेशन पर चल रहे हैं, आपके दोनों हाथों में बहुत सामान है और एक समझदार साथी आपके साथ है, तो वो क्या करेगा? समझदार है तो थोड़ा आपसे शेयर कर लेगा, बांट लेगा। लेकिन अनुभव ऐसा कहता है कि जब हम जीवन में भगवान को अपना साथी बनाते हैं, तो वो थोड़ा बोझ नहीं, जीवन का सारा ही बोझ हर लेता है। और जैसे पहले मैंने कहा, ये तो अनुभव की बात है। ज़रूरत है कि हम उससे समीप का रिश्ता जोड़ें। एक डीप मेडिटेशन की प्रैक्टिस अभी हम मिलकर के साइलेंस में करेंगे, और उससे कनेक्ट होने का एक छोटा सा एक्सपीरियंस हम अभी लेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे बीच प्रसिद्ध पार्श्व गायक हरीश मोयल जी हैं। आप खुद भी मेडिटेशन की प्रैक्टिस बहुत समय से कर रहे हैं और एक प्रभु प्यार का गीत हमारे आगे प्रस्तुत कर रहे हैं। उस गीत में जहाँ पर भी बाबा अक्षर आता है, तो ये उसी निराकार ज्योति स्वरूप, पॉइंट ऑफ लाइट, सुप्रीम सोल, शिव बाबा की ओर संकेत है। तो वो सुंदर अनुभव गीत के साथ भी हम लेंगे और उसके पश्चात एक मेडिटेशन की प्रैक्टिस हम करेंगे। हरीश मोयल जी। ओम शांति। जैसा कि हम सबको पता है कि पूरी दुनिया के लिए, पूरे संसार के लिए ये एक ऐसा समय है जब कहीं ना कहीं कोई ना कोई थोड़ा सा निराश हो जाता है। जिस तरह की चीज़ें, जिस तरह की घटनाएं हम देखते हैं, कई सारे लोग इस वक्त अकेलेपन का शिकार हैं। कई सारे लोग इस वजह से डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि बाबा को अपना साथी बना लें, और जिसके साथ ऐसा साथी हो, फिर उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, फिर पूरी दुनिया उसकी साथी बन जाती है। तो ये खूबसूरत गीत बाबा की याद में।
कभी छाँव बनकर, लहरों में कभी नाव बनकर, धूप में कभी छाँव बनकर, लहरों में कभी नाव बनकर, लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ, जब लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ। मेरे बाबा है साथ, 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 है बाबा मेरे साथ, मेरे बाबा है साथ। जब भी छाने लगे ये अंधेरा, मेरे संग संग चले जो सवेरा। जब भी छाने लगे ये अंधेरा, मेरे संग संग चले जो सवेरा। हर लम्हा दीप बन के जले, कांटों पे भी मेरे संग संग चले। अब तो लगता है जन्नत बनी हयात। मेरे बाबा है साथ, मेरे बाबा है साथ, मेरे बाबा है साथ, मेरे बाबा है साथ, है बाबा मेरे साथ, मेरे बाबा है साथ, है बाबा मेरे साथ, मेरे बाबा है साथ। अभी एक सुंदर अनुभव के लिए तैयार हो जाएं। कंफर्टेबल बैठें, रिलैक्स, अलर्ट और कंफर्टेबल हो जाएं। मन को सब तरफ से समेट लें। Detach yourself from everything and come to the present moment. अपने आप को ये स्मृति दिलाएं, आज मैंने परमात्मा का परिचय प्राप्त किया है। वो भगवान जो मेरा फ्रेंड है, मेरा फादर है, मेरा बिलवेड है। जैसे मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूं, ऐसे वो भी एक पॉइंट ऑफ लाइट है, स्पार्कलिंग स्टार है। देखें उसे, पर वो परफेक्ट है, प्यार का वो सागर है, शांति का सागर है और मेरा है। वो ऐसा फ्रेंड, वो ऐसा फादर है जो सदा मेरे भले की सोचता है। मेरा है, सदा मेरे हित का सोचता है। वो मेरे लिए हाजिर है। वो सदा मुझे मदद देने के लिए हाजिर है। मुझे प्योर बनाने के लिए हाजिर है। बस केवल मुझे हिम्मत का कदम उठाना है।
दिल में अगर कोई बात है तो उससे शेयर करें। अगर कोई डिस्टरबेंस है, कोई बोझ है, कोई सीक्रेट है या कोई खुशी की बात भी है, उससे शेयर करें। वो सारे बोझ जैसे हर रहा है, उसके साथ मेरा कनेक्शन, मेरा रिश्ता वाइब्रेशन के लेवल का है। ये मेरे संकल्प उसे पहुंच रहे हैं। इसलिए जो भी मन का बोझ है उसे सौंप दें और जैसे छोटा बच्चा होता है ऐसे बच्चे की तरह हल्के हो जाएं। वो ऑलमाइटी अथॉरिटी, प्यार का सागर मेरा है। कुछ पलों के लिए अपनी बुद्धि को प्लेन करके बैठे। और ये वायरलेस कनेक्शन उससे जो जुट रहा है उसकी टचिंग्स को अब कैच करें। और अगर कुछ टच नहीं भी होता है, राइट टाइम पे जरूर टच होगा। कुछ पलों के लिए उसकी लाइट एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे सूर्य चारों ओर अपनी किरणें बिखेरता है, ऐसे परमात्मा अपनी लाइट और माइट चारों ओर बिखेर रहा है। महसूस करें जैसे कि उसका प्यार मेरे चारों ओर वेव्स की तरह है। उसकी पवित्र किरणें मुझ पर आ रही हैं। फील करें जैसे वो मुझसे बहुत प्यार करता है। There is a blanket of love all around me. Unconditional love. Pure love. I feel full. दिल जैसे गा रहा है, पाना था सो पा लिया। उस भगवान के साथ जैसे मैं कंबाइंड हूँ, शिव शक्ति हूँ, अब अकेली नहीं, उसका सदा का साथ है। अब ऐसे सुंदर अनुभव के साथ, इस लाइट, हैप्पी, जॉयफुल फीलिंग के साथ दिन के हर कर्म करने का संकल्प लें। ओम शांति। सूर्यमुखी दिन में खिलता है, रात में नहीं। चंद्रमुखी रात में खिलता है, प्रभात में नहीं। पर राजयोगी हर क्षण खिलता ही रहता है, क्योंकि उसकी मुस्कान किसी के हाथ नहीं। इन अनुभूतियों के सुंदर पलों को अपनी यादों में संजोते हैं और कल पुनः कंपैशन इन एक्शन विषय को सुंदर वार्तालाप के रूप में डॉक्टर स्वामीनाथन एवं सिस्टर श्रेया को सुनते हैं।